संवाददाता सम्मेलन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। एक अध्यक्ष आदरणीय राजेश ठाकुर जी और नेता विधायक दल आदरणीय आलमगीर आलम साहब उपस्थित हैं। ये निंदनीय घटना है और जिस तरह की बातें सामने आई हैं और जिस तरह का दृष्टांत पिछले दिनों से लगातार देखा जा रहा है, पूरे देश में जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं उनको कहीं ना कहीं अस्थिर अपदस्थ करने की कोशिश की जा रही है और उस प्रयास में कई बार भारतीय जनता पार्टी सफल होते भी दिखाई दी है। बावजूद अपनी हरकतों से भारतीय जनता पार्टी बाज नहीं आ रही है और आज जो हम लोग देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, जिस तरह से हमारे विधायक अनूप सिंह जी ने शिकायत की है थाने में, उसे ये प्रतीत होता है कि सभी विधायकों से भारतीय जनता पार्टी के नेता संपर्क कर रहे थे और कुछ विधायकों को उन्होंने ट्रैप करने का भी कोशिश किया है। हम समझते हैं कि इससे घिनौनी हरकत कोई नहीं हो सकती है, वो चाहे बिकने वाला हो चाहे खरीदने वाला हो, निश्चित रूप से दोनों की निंदा होनी चाहिए। आपने देखा होगा पिछले दिनों किस तरह से शिवसेना के विधायकों को तोड़ने का काम किया गया और महाराष्ट्र में हमारी सरकार जो जनता के द्वारा चुन के आई थी उसको गिराने का काम किया गया। तो आप सब समझ सकते हैं कि किस तरह से जो जनता की चुनी हुई सरकार है, जो जनता चुन के देती है, जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में मतदान करती है और सरकार बनाने का काम करती है, वैसी सरकारों को दिन दहाड़े सरेआम लोकतंत्र की हत्या करके ये बताने का प्रयास किया जा रहा है भारत की जनता को कि चाहे तुम वोट किसी को दो, सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी। इस कृत्य की पूरे देश में निंदा हो रही है और हम समझते हैं कि जो लोग इस तरह की कार्रवाई में संलिप्त हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस मद्देनज़र हम लोगों ने आज FIR भी दर्ज कराया हमारे विधायक अनूप सिंह जी ने। मैं उस विधायक द्वारा की गई कंप्लेंट को पढ़ के सुना देता हूं। टू द ऑफिसर इंचार्ज अरगोरा रांची, आई Anup Singh, MLA of Jharkhand, would like to lodge a complaint regarding offer of gratification being offered to me to topple the present government of JMM and Congress, which came to power with a thumping majority. Shri Irfan Ansari, MLA Jamtara, Shri Rajesh Kachchap, MLA, and Shri Bixal Kongari, MLA, are calling me to Kolkata and offering me money, and they are promising 10 crores per MLA. Shri Irfan Ansari and Rajesh Kachchap wants me to come to Kolkata and then take me to Guwahati, where according to him, he will make me meet Shri Hemant Biswa Sharma, who will give me assurance of a definite ministerial berth apart from the money. Irfan Ansari has told me that he has already been promised health ministry in the new government. He also told me that he shall be reaching Kolkata yesterday afternoon. He said that he has already got money transferred to his persons, and once I reach Guwahati and promise it in front of Sri Assam CM Himanta Biswa Sharma, he assured me that Sri Sharma is doing it with the blessing of topple sorts of BJP political party sitting in Delhi. He do not want to be part of his unconstitutional, illegal and downright criminal activity, and hence informing you that me please take action against them who we stationed in Kolkata with token amount and pressuring me to come to Kolkata and accompany them to Guwahati. Since I do not want to be a part of such criminal offence and indulge in such unethical activity which breaks the constitutional structure of the country, would request you to
take action as per Section 7C of Prevention of Corruption Act and 120B IPC and bring this kind of criminal activity to a stop, which strikes at the very heart of the democracy and book the persons as per the provisions of law and law for influencing me for an illegal act in active coalition with others who are operating from behind to topple the present government of Jharkhand with a dangerous design and adopting all sorts of illegal ways by influencing their position being in capacity of public servants। इस बात को लेकर के एफआईआर दर्ज किया गया। उसके बाद हमने आदरणीय आलमगीर साहब ने अपने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी को, आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी को इस बात से अवगत कराया है और तत्पश्चात सस्पेंशन की कार्रवाई हुई है। हम समझते हैं कि जो ये हुआ है निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है और आने वाले समय में आप तमाम मीडिया साथियों से भी आग्रह होगा कि आप जिस तरह से लगातार अपनी बातों को कहते रहते हैं और तरह तरह से सारी चीज़ों को सामने लाते हैं, इस चीज़ को भी जरूर लाइएगा कि सिर्फ बिकने वाला ही नहीं, खरीदने वाला कौन कौन है वैसे लोगों पर कार्रवाई हो। चूँकि हमने देखा है कि पहले जो महाराष्ट्र सरकार गिराई गई उस पर जो विधायक थे उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और जो बिकने वाले थे उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जो खरीदने वाले थे उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए हम आपके माध्यम से मांग करेंगे कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द दंडित किया जाए। जो लोग इस खरीद बिक्री खरीद फरोख्त में शामिल हैं उन पर हम लोगों ने एफआईआर किया है। निश्चित रूप से कार्रवाई बहुत जल्द होने की हम लोग संभावना व्यक्त करते हैं। क्षमा प्रार्थी हूँ थोड़ा विलम्ब होने के कारण। यहाँ उपस्थित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजेश ठाकुर जी, कार्यकारी अध्यक्ष राजीव जी, आप सबको मालूम होगा कि कल शाम से जो प्रकरण शुरू हुआ, इस प्रकरण की पटकथा हमको लगता है 2 वर्ष पूर्व से ही लिखी गई थी और इस विषय में कई बार हम लोगों ने दल के माध्यम से संयुक्त रूप से इस बात को कहा था। पूर्व में रांची के होटल में कार्रवाई भी हुई थी, लेकिन जो धृष्टता भारतीय जनता पार्टी का है, येन केन प्रकारेण एक चुनी हुई लोकतांत्रिक लोकप्रिय सरकार को अपदस्थ करना, ताकि भारतीय जनता पार्टी का जो लूट के जो सपना है, खासकर इस इलाके में जो खनिज पर जो कॉरपोरेट घरानों की जो लूट थी, उनकी एक मंशा है, उसको कामयाब किया जा सकता। मैं तो बहुत आभार व्यक्त करने के लिए मेरी पार्टी की ओर से मेरे आदरणीय नेता गुरुजी के निर्देश पर हेमंत सोरेन जी के तरफ से मैं कांग्रेस का आभार व्यक्त करने आया कि जितना विजिल कांग्रेस पार्टी है इस सरकार के स्ट्रेंथन के लिए, इस सरकार को मजबूती के साथ चलाने के लिए, उनकी जो प्रखर नज़र अपने विधायकों पर है और जो अनुशासन कांग्रेस पार्टी ने दिखाने का काम किया है, उसके लिए हम लोग अपनी पार्टी की ओर से आभार व्यक्त करने के लिए भी आए। हम लोग जानते हैं कि बहुत दिनों के बाद, लगभग 20 वर्षों के बाद, हमारे राज्य में एक स्पष्ट नीति के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन, जिसमें सारी बातें तय, उसके बाद ही ये सरकार अस्तित्व में आया। तो ऐसे परिस्थिति में
इस सरकार के खिलाफ यदि कोई साजिश रची जाती है वो सीधा लोकतंत्र पर हमला है। और मैं पहले भी आप लोगों को कह चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का एक मंत्र है, जहाँ चुनाव जीत कर आएंगे वहाँ तो सरकार बनाएंगे, लेकिन जहाँ चुनाव हारेंगे वहाँ सरकार जरूर बनाएंगे। ये प्रयोग मध्य प्रदेश में हुआ, कर्नाटका में हुआ, गोवा में हुआ, त्रिपुरा में हुआ, यह प्रयोग महाराष्ट्र में हुआ, राजस्थान में कोशिश की गई, लेकिन वहाँ पर भी कांग्रेस जितने विजिल थी, जितनी सतर्क थी कि वहाँ पर भी प्रयास विफल हुआ। और झारखंड में भी ये लगातार प्रयास जो चल रहा है कांग्रेस के सतर्कता के कारण, वो प्रयास कभी कामयाब नहीं होगा। इसी बातों को साथ हम यहाँ पर आए थे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से मिलने। आपस में हम लोग कुछ बात भी करेंगे क्योंकि कल से सदन की कार्रवाई भी शुरू होगी और बहुत बड़े बड़े जो लोकाकांक्षी फैसले हैं वो फैसले भी लिए जाएंगे। देखिए, एक चीज आप समझ लीजिए, हम तो अपने सभी साथियों को अपना मानते हैं। कुछ साथी गलत रास्ते में चल जाते हैं तो उसका जिम्मेवारी तो हम नहीं ले सकते। तो इसलिए राजनीति में ये सब चीजें होते हैं। उनके पास भी ऑफर गए थे, आप लोग देखे होंगे कि जिस व्यक्ति के नाम पे उन पर FIR हुआ था उस पर केस भी दर्ज है। और हमको लगता है कि इसके पहले भी अनूप सिंह जी ने एक FIR किया था, वो भी केस चल ही रहा है। अब आगे आगे न्याय व्यवस्था जो काम करेगा उसको हम लोगों को फॉलो करना। अब रामदास सोरेन क्या कांग्रेस के विधायक है? नहीं, ठीक है, लेकिन बार बार कांग्रेस के विधायकों का जैसे क्या कुछ दिन पहले हम लोगों के लिए बहुत सहज पंचिंग बैग है। नहीं, ये हम लोग नहीं ला रहे, ये तो ऐसे पृष्ठभूमि बन रहा है जो हम लोग बोलने को आप लोग के लिए बहुत स्पष्ट ये पंचिंग बैग है, क्योंकि जब कोई सवाल का उत्तर नहीं दे सकते हैं तो उसके लिए दोषी जवाहरलाल नेहरू जी हो जाते हैं, राहुल जी हो जाते हैं, सोनिया जी हो जाती है और कांग्रेस हो जाती है। वो देखिए आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी है, वही जानते हैं। और जो हम लोगों के समन्वय समिति में जो संसदीय कार्य मंत्री जी हैं, हेमंत जी हैं, सदन में इन दोनों की जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी और दोनों परिपक्व है। हमको लगता है कि ये तिकड़ी काफ़ी है इस राज्य को सही दिशा देने। अब आप लोग सबका दाम ही लगा दीजिएगा तो कौन नहीं बिकेगा, ऐसा थोड़ी होता है। ये कोई सामान है क्या कि अभी मॉनसून सेल चल रहा है के साथ एक फ्री है? फिर भी पूरी तरह कॉन्फिडेंट है और हम 2024 में आशा और उम्मीद नहीं विश्वास करते हैं कि जॉइंटली फिर से लोगों का आशीर्वाद लेने जाए। अच्छा दादा, देखिए, सरकार तो हमेशा विजिल रहती है ना। अब जहाँ जो चीज ट्रांजेक्शन हो रहा है वो स्टेट का जुरिडिक्शन का मामला है, वो स्टेट करता है, लेकिन एक दूसरे का शेयरिंग, इंटेलिजेंस शेयरिंग हर वक्त सरकार में चलते रहता है।